तो आज हम एडोलेसेंस, उसके प्रॉब्लम्स, पेरेंट्स और बच्चों की बदलती हुई केमिस्ट्री पर बात करने आए हैं। एडोलेसेंस is the age of rapid transition. Rapid changes occur. Rapid development takes place at this age. Physical, mental, social changes are there. और इस एज में बच्चा स्वयं को एम्पावर्ड फील करता है. He tries to find out his or her identity. He tries to explore his present and builds his future on the findings of present. इस एज में पेंडेमिक और नो पेंडेमिक, 20% of the population at this age suffer from some kind or the other mental exhaustion. Mental abnormalities are faced. And with pandemic at hand, these numbers are doubled and tripled. 600 million adolescent children are suffering worldwide. Suffering from lockdown, shutting down of schools, no social outings. तो क्या कर रहे हैं वो बच्चे? और इन बच्चों में हमने उनको कैलकुलेट नहीं किया who are already at risk in challenging home environments or at shelter homes. They are underprivileged or poor or destitute. So these children are not counted in this 600 million number. The risk is alarming. I have here with me a survey conducted by UNICEF and International Federation of Medical Students Association. This was hosted by UNICEF and WHO. They say 70% children are feeling negative about their future. I'm talking about this lockdown phase. So 70% children are having negative attitude. 79% are worried about the infection. 44% say they do not know enough of this virus, so they are afraid. And 38% are saying worse is yet to come. 61% children are having a drop of 123% in their concentration level. 100% are having sleeping disorders, eating disorders, and 40% have developed fear. You see, our children, our youth is well equipped physically to fight with this disease, but not mentally. They are a weaker lot there. No one has taken care of their mental stability. Parents are fighting, children are fighting, and they are reaching nowhere. कुछ 15 दिन पहले मैं कुछ पेरेंट्स से मिली और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस जो शेयर किए, उन्हीं की वजह से ये वर्कशॉप कंडक्ट किया गया. Parents of a 16-year-old child confessed that they do not know where their child is going. एक बच्चा था वो जो हमारे पास भी आता था जब छोटा था, और इस लॉकडाउन के फेज में स्पेशली उसने घर से भागने का काम किया. Parents are suspecting he has a girlfriend, but he is not disclosing her name. So he is lying. एक दूसरे पेरेंट ने बताया उनकी बेटी 13-year-old daughter, उसने घर से मम्मी की अलमारी से पैसे चुराए. क्यों, ये उसने नहीं बताया. बहुत पूछने पे उसने कहा, कुछ एक्सक्यूजेस दी,
जो पेरेंट्स के हिसाब से अनएक्सेप्टेबल थी। तो डरे हुए हैं पेरेंट्स। ये कुछ एक्स्ट्रा केसेस हैं, लेकिन नॉर्मली भी सभी घरों में पेरेंट्स फेस कर रहे हैं, क्योंकि 8-10 महीने से बच्चे कैद हैं घरों में, स्कूल्स नहीं हैं, they are not having any social gatherings, they don't have space to talk, to express their emotions, their feelings. हम एक बार इन प्रॉब्लम्स को ठीक से देखें। बहुत सी प्रॉब्लम्स मैंने जॉट डाउन करी, और एक बार हम पूरा स्ट्रक्चर देखें प्रॉब्लम्स का, देन विल डिस्कस अबाउट इट। So children are having these many problems, and there are more problems than these. So we'll discuss a few. They are telling lies. एक बहुत उभर की प्रॉब्लम जो सामने आई कि बच्चे छुपा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो या तो उसे ये डर होता है कि एक्सेप्ट नहीं होगी, उसकी बात एक्सेप्ट नहीं की जाएगी घर में, और या उसे ये डर होता है कि पेरेंट्स उसे डांटेंगे। तो इन दोनों ही सिचुएशन में बच्चा छुपाता है। सो ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड इट। देन दे गेट इरिटेटेड फास्ट। ये एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है जो पेरेंट्स सफर कर रहे हैं। जरा सी बात होती है और बच्चा इरिटेट हो जाता है, एज इफ ही इज सिटिंग ऑन एज। तो छूने से करंट लगता है। पेरेंट्स का कहना है कि ऐसा लगता है बच्चों को जैसे कुछ कहेंगे तो लाइक लाइव इलेक्ट्रिक वायर दे आर। आप उनकी जगह बैठ के देखिए एक बार कि बच्चा क्या फेस कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। 7 to 9 hours इन फ्रंट ऑफ टीवी स्क्रीन, ये उन्हें इरिटेट कर रहा है। वो समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है। अंदर और बाहर के ट्रिमेंडस प्रेशर से, ट्रिमेंडस चेंज से वो पहले ही गुजर रहे थे। नाउ दिस लॉकडाउन फेज, ट्राइंग टू understand the informations given by teachers, which is almost impossible on a screen learning. So they are uncertain about their future. The third problem is being uncertain. इस समय the whole world is suffering from this uncertainty of future. But adolescence में problems बढ़ के सामने आती हैं. They are being fearful, don't know what to do, how to do. So they are being fearful. और ये fear कहाँ से आया? ये आपसे उनके अंदर पेनिट्रेट तो नहीं हो रहा कहीं? So try to find out that. Lower self-esteem. They are not able to meet with other people, so their self-esteem is lowering day by day. They are developing another kind of disease that is called internet addiction. Children are getting addictive. पहले ही काफ़ी देर वो टाइम स्पेंड करते हैं नेट के ऊपर, और जब लेट नाइट को पेरेंट्स चाहते हैं कि वो गैजेट छोड़ दें तो ऐसा वो नहीं करते हैं। यदि छूटता भी है हाथ से तो फिर उठा लेते हैं, एज इफ समथिंग इज पुलिंग देम। आप खुद करके देखिए, यदि आप 4-6 घंटा एक दिन मोबाइल पकड़ के रखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे वो छूट नहीं रहा हाथ से। रखते हैं और फिर उठा लेते हैं, रखते हैं और फिर उठा लेते हैं, एज इफ समथिंग इज मिसिंग। दिस इज कॉल्ड इंटरनेट एडिक्शन। ये डेवलप हो जाता है। तो एक सर्टेन टाइम से ज़्यादा स्क्रीन घातक होती है मानसिक डेवलपमेंट के लिए। Then they are having alcohol and drug addictions. Yes, they are having this. Your teenager child may be addicted, or maybe he is trying new things. क्यों? क्योंकि वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, वो एंजाइटी का शिकार हो सकता है। तो यदि वो बाहर नहीं जा पा रहा, यदि उसके पास
और कोई साधन नहीं है स्वयं को एक्सप्रेस करने का या एंटरटेन करने का, तो व्हाई नॉट ट्राइंग ड्रग और व्हाई नॉट ट्राइंग अल्कोहल? दे आर सफरिंग फ्रॉम स्लीपिंग डिसऑर्डर्स। एक सर्वे का कहना है 100% चिल्ड्रन आर सफरिंग फ्रॉम स्लीपिंग डिसऑर्डर्स. That is that common in these lockdown periods. Their habits are changed. Even if they are sleeping, they are not sleeping well. So they are not fresh in the morning. And this is leading to eating disorder. Yes. एक वैक्यूम को भरने के लिए दूसरा वैक्यूम, दूसरा फिलर क्रिएट किया जाता है। तो क्योंकि बहुत टाइम तक बच्चों को बाहर का खाने को नहीं मिला, ये वजह, या फिर ये वजह कि एक वैक्यूम वो अंदर पा रहे हैं जिसको फिल करने के लिए वो कभी बर्गर कभी पिज्जा की डिमांड कर रहे हैं। और दिस ईटिंग डिसऑर्डर इज लीडिंग अगेन टू स्लीपिंग डिसऑर्डर एंड अदर प्रॉब्लम्स एज इट इज. So they are developing depression, anxiety, trauma, sadness, hopelessness, all because they are suffering from loneliness. Yes, you are there, but you only are not enough. You must understand this, that you are not enough. आप वो वैक्यूम नहीं भर सकते जो क्रिएट हो गया है. आप उन चार दीवारियों को गिरा नहीं सकते जो बच्चे को पिंजरे में बंद मैना की तरह परेशान कर रही है. So because he is not able to go out, because he is not able to express himself or herself, he or she is having depression. Then they are having this drop in concentration. This is very important to study, to do any work, to memorize things, to calculate, to analyze. You have to have concentration, and these children are missing that. इसका कारण स्क्रीन भी है. स्क्रीन स्टडी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है इसका. स्क्रीन पे होने वाली पूरी पढ़ाई, कितना एडवांटेज है उसका और कितना डिसएडवांटेज है, ये एनालाइज करने का, ये देखने का विषय है. दे आर हैविंग अवॉइडेंस बिहेवियर. या तो बच्चे विड्रॉन सिम्टम के शिकार होते हैं और या वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं पेरेंट्स के साथ. तो एट टाइम्स अवॉइडेंस का सहारा लेते हैं. कोई भी सिचुएशन खड़ी होते देखते हैं तो दे ट्राई टू अवॉइड इट बाय नॉट रिप्लाइंग और बाय हाइडिंग इन देयर रूम और बाय सेइंग दे डोंट हैव टाइम टू डिस्कस. पेरेंट्स ने मुझे बताया कि जो एक फेज था पहले कि सिट डाउन एंड वी विल टॉक ओवर इट, दिस इज नॉट वर्किंग दीज डेज. दे आर जस्ट नॉट रेडी टू लिसन. क्यों? अति सर्वत्र वर्जयते वर्जयते. आपकी भी अति हो चुकी है और उनकी भी अति हो चुकी है. The too much of you is bothering them maybe. So they are trying to avoid. They do not want to face this present scenario. सोचिए, जो बच्चा बिल्ड करना चाह रहा था अपना फ्यूचर आज के प्रेजेंट सीन पे, वो आज के प्रेजेंट सीन को ही अवॉइड करना चाह रहा है. यदि जमीन ही नहीं तो किला कैसे बनेगा? Try to penetrate in their psychology. Try to see how their brain, their mind is working. They are having this feeling of worthlessness. Yes, they are having. ऐसे ऐसे इंस्टाग्राम के ऊपर उन्होंने अपने नाम दिए हुए हैं. डिस्ट्रेस्ड सोल, होपलेस सोल. जनरेशन Z is at end. बिकॉज उनको लग रहा है कि उन्होंने जो कुछ किया अभी तक वो वर्थ नहीं रह गया.
कि एक वायरस आ गया और पूरा सब कुछ उलट पुलट हो गया, आगे क्या होगा। पेरेंट्स बदल गए, स्कूल्स बंद हो गई, जो ड्रीम्स थे, जो कलरफुल पैटर्न्स थी लाइफ की, एक ही झटके में इट इज ऑल ओवर। तो उन्हें लग रहा है कि फ्यूचर डज नॉट एग्जिस्ट। मैनी चिल्ड्रन शेयर्ड विद मी, आंटी हम कहाँ जा रहे हैं, आंटी हमें लग रहा है कि कुछ नहीं बचा लाइफ में। दे सेड इट। सो दे आर हैविंग लैक ऑफ एनर्जी। इस मेंटल कंडीशन में यू कांट एक्सपेक्ट them to be as cheerful, as energetic as they have been a year before this 2020. So, please remove the slide. These are psychosocial issues, and there are psychological issues on individual front and on psychological fronts. The situation is grim. There are other factors also which are to be taken care of. That exposure to rays is not good for mental and physical conditions, and they are suffering from one more for kind of pollution, that is indoor pollution. This is a new term, we can call it indoor pollution. बहुत देर तक अंदर रहने से प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाती हैं. These problems don't have a virus, but they are no less damaging than a virus. एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको. गर्मी के ऋतु में खरबूजे आते हैं, लवली स्वीट फ्रूट. एक खरबूजा एक बंद कार के अंदर रख दीजिए, 2 घंटे बाद कार का गेट खोल के देखिए. The smell is intolerable. Why? Because खरबूजे की अपनी स्मेल अच्छी नहीं है. Too much of this smell is not good. एक भी impurity है तो वो डबल ट्रिपल 4 टाइम्स 10 टाइम्स इट विल ग्रो, और कुछ दिन बाद केवल वो इम्प्योरिटी ही दिखाई देगी उस चार दीवारी के अंदर. सो यू विल हैव दिस indoor pollution. They are suffering from this. Then there is this isolation due to COVID factor. कि किसी बच्चे को यदि हो गया कोरोना या कोविड, तो उनको जो आइसोलेट किया जाता है वो ट्रॉमा बहुत खतरनाक है उनके लिए. उससे भी हमें उस बच्चे को निकालना है जिससे कि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट ना हो उनके ऊपर. सो यू हैव सीन मैंने एक छोटा सा आपके सामने ग्लिम्स रखा सिचुएशन का. कुछ ऐसे भी पेरेंट हैं जो कहते हैं कि हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे घर में प्रॉब्लम नहीं है. देखिए, ये बहुत अच्छी बात है यदि आपके संग कोई प्रॉब्लम नहीं है, वन थिंग. बट इफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सफरिंग, यू कैन नॉट लिव पीसफुली. आपका बच्चा जब बाहर निकलेगा, दूसरे बच्चों से मिलेगा जो सफ़र कर रहे हैं, तो निसंदेह उस पर भी प्रभाव पड़ेगा. और ये भी तो हो सकता है कि आपको पता न चल रहा हो, बट द प्रॉब्लम इज देयर. कुछ ना कुछ तो असर सब पर हुआ है इस लॉकडाउन का, बिकॉज दिस इज अ वेरी एबनॉर्मल सिचुएशन. हमारे ब्रेन, हमारी साइकी, हमारे फिजिकल बॉडी, कुछ भी इसके लिए प्रिपेयर नहीं था. तो कहीं तो उसका फर्क पड़ा है. तो अब हम बात करते हैं, अब हमने एक सीन देखा और अब हम उसके सॉल्यूशंस पर बात करते हैं कि व्हाट आर वी डूइंग, हम क्या कर सकते हैं. देखिए, सिचुएशंस आती जाती हैं और उसके लिए सभी तरह के स्टेप्स लिए जाते हैं, अच्छे और बुरे.
कुछ कारगर सिद्ध होते हैं, कुछ नहीं, समय और स्थितियों के अनुसार। बट why to come to a person who is a spiritual person and not a psychotherapist? Because yes, you should go there also. आप साइकेट्रिस्ट से भी मिलिए, आप सोशल रिफॉर्मर से भी मिलिए, बट अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी माइंड के बाहर काम करती है, बाकी लोग माइंड के अंदर रह के काम करते हैं। सो हमारे पास एक अलग तरीका होता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। लेट्स डिस्कस ऑन द सॉल्यूशन पार्ट नाउ। This is first and foremost thing, that let them grow up at their own pace. पैंडेमिक को ये हम एक एबनॉर्मल सिचुएशन की तरह लें या फिर हम नॉर्मली आने वाली बाधाओं के रूप में लें कि लाइफ का पैटर्न ही है ऊपर नीचे होते हुए चलना। तो पैंडेमिक इज जस्ट वन मोर टर्न इन लाइफ। जीवन के पथ पर एक और टर्न है, बट किस तरह का टर्न है? बहुत नया टर्न है। सो ह्यूमन ब्रेन वर्क्स ऑन कंडीशनिंग and pandemic or lockdown does not fit in any previous structure. It has never come before. So there is a mental chaos in grown-ups rather structured mind, because their mind is already conditioned. पर बच्चे situations को जल्दी adopt करते हैं। So youth will do better if they are trusted. Problem क्या है कि पेरेंट्स, टीचर्स, ग्रोन अप पीपल, दे डोंट ट्रस्ट द यूथ। उन्हें लगता है कि नहीं, बच्चा इतनी जल्दी कैसे कर पाएगा। ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, उसे ऑलरेडी केज्ड है वो बच्चा, उसको और केज करने की कोशिश करते हैं। लेट देम ग्रो, ट्रस्ट देम, हैव पेशेंस। Adolescents seek independence and have a constant urge to establish their identity. Lockdown has curtailed this identity, so either they withdraw or have conflicts with their parents. तो solution क्या है? They need others to talk to. मेरी कई मदर्स से बात हुई on this issue, और उनकी बातों से ये क्लियर बनता है कि they want to be a perfect parent. उन्हें लगता है कि किसी और से यदि मिले बच्चे और उसने कुछ और बता दिया तो बच्चों पे गलत असर पड़ेगा, कि my child is mine, so he or she should talk to me first. यदि उसको कोई प्रॉब्लम है तो उसे सबसे पहले मुझे बताना चाहिए। यदि वो कहीं जा रहा है, यदि उसकी कोई फ्रेंडशिप है तो मुझे बताना चाहिए। यदि उसकी कोई अर्ज है, कोई नीड है, तो ही शुड कम टू मी। देखिए, ये प्रॉब्लम पैंडेमिक से कम रिलेटेड है और यूथ से अधिक रिलेटेड है। एडोलेसेंस एज में ये प्राय करके होता है कि बच्चा बाहर जाना चाहता है, दूसरों से मिलना चाहता है। मदर्स, स्पेशली मदर्स, उन्हें अपने तक रखना चाहती हैं। तो लेट देम गो आउट। अभी क्योंकि वो फिजिकली नहीं जा सकते बाहर, तो उन्हें दूसरे साधनों के जरिए मिलने दीजिए, फ्रेंड्स से, टीचर्स से। और कभी कभी यदि बिहेवियरल काउंसलर की भी ज़रूरत पड़ती है या किसी और के पास भी जा कर के यदि वो अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं, तो लेट देम गो। बच्चे का ये नेचर है, एडोलेसेंट चाइल्ड का, कि उसे दूसरों से, थर्ड पर्सन से बात करके ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है उनकी ग्रोथ का, क्योंकि इस तरह वो अपनी आइडेंटिटी को तलाश करते हैं।
उनका सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पर्सनालिटी ग्रूमिंग होती है, क्योंकि नाउ दे आर टॉकिंग टू अदर पीपल, दे आर रिप्रेजेंटिंग देमसेल्व्स एज अ ट्राइंग टू ग्रो अप पर्सन. So let them grow at their own pace. Let them talk to other people. You haven't been through a pandemic, neither have they, so stop judging them. मेरा बच्चा ऐसा हो गया, मेरे बच्चे ने चोरी करना शुरू कर दिया, मेरा बच्चा घर से बिना बताए चला गया, मैं 4 घंटे तक रोती रही, मेरा बच्चा चेंज हो गया, मेरा बच्चा अब वो नहीं रहा जो पहले था, वो अपना कमरा बंद करके रखता है, मुझे अंदर नहीं आने देता, स्क्रीन शट डाउन कर देता है, द मोमेंट आई गो देयर वो मिनिमाइज कर देता है. जरूर वो कुछ गलत कर रहा है, जरूर वो कोई ऐसा काम कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए, उसके मार्क्स ड्रॉप हो रहे हैं, उसका कंसंट्रेशन लेवल खत्म हो रहा है, he is visiting all the time, he is being uncertain, he is fearful. Stop judging them. एक बार उनको न देख के अपनी तरफ देखिए. क्या ये सारी बातें आपके ऊपर लागू नहीं होती? क्या आप नहीं बदल गए? क्या आप अनसर्टेन, फियरफुल नहीं हो? If talking to them is not working, then show patience. सारा दिन आपके संग घर में रहता है, छोटे से अपार्टमेंट में, अब कितना बैठ के बात करेगा? नहीं चाहता वो आपके संग बैठना, तो show patience. Have patience. He or she is still a child, but you are not. So stop trying to be a perfect parent for some time, please. No one can be a perfect parent. थोड़ा सा ज़्यादा प्यार बच्चे को बिगाड़ देता है, थोड़ा सा कम प्यार बच्चे को बिगाड़ देता है, थोड़ी सी ज़्यादा डिसिप्लिन कॉन्फिडेंस गिरा देती है, थोड़ा सा कम डिसिप्लिन बच्चे को उशंकल बना देता है. Things will change at their own pace. पैंडेमिक के आने के पहले आपको नहीं पता था कि पैंडेमिक आने वाला है. इसके जाने के बाद क्या होगा वो भी आपको नहीं पता. तो टेक वन डे एट अ टाइम. डोंट ट्राई टू बी मिस परफेक्ट और मिस्टर परफेक्ट. Then children worry anticipatory grief. Like they may lose someone dear, but most of the time they are mirroring you. So create a positive atmosphere at home. एक डर, एक ट्रॉमा, एक ग्रीफ, एक सैडनेस, दिस ओवरपावरिंग दिस वर्ल्ड टुडे. तो आप उससे अलग कैसे हो सकते हो, और आपका बच्चा भी उससे अलग नहीं है. सो क्रिएट अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर एट होम एटलीस्ट, कि सब अच्छा होने वाला है, कि सब अच्छा है. हर डार्क क्लाउड के पास एक सिल्वर लाइनिंग होती है. सो स्टार्ट सीइंग दैट सिल्वर लाइनिंग. अच्छा सा म्यूजिक लगाइए, डांस करिए, घर में खुशी का माहौल रखिए. डू नॉट फियर. क्या हो जाएगा? तुमने बालकनी से देख लिया. 4-5 months ऑफ लॉकडाउन, मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि कॉरिडोर में नहीं गए घर के, लॉकडाउन में बालकनी में नहीं गए. तो क्या हो रहा था बच्चों के ऊपर असर? अच्छा ब्राइट फ्यूचर आएगा. बी होपफुल, बी सर्टेन. एक काम और कर सकते हैं आप कि अपनी पेरेंटिंग स्किल्स में चेंज लाइए. ट्राई टू इन्वेंट न्यू थिंग्स, एक्सप्लोर न्यू आइडियाज, बिकॉज टाइम इज चेंजिंग. सो चेंज के साथ चेंज को अपनाना जरूरी है. लेट द चाइल्ड एक्सप्रेस देम इन डिफरेंट वेज, लाइक आर्ट, डांस, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, कुछ भी, जो भी उसका शौक हो, गार्डनिंग, फोटोग्राफी, एनीथिंग.
ये वेज हैं एक्सप्रेस करने के। सारे टाइम इतना देर बच्चा एक स्क्रीन के सामने बैठा रहता है, उसके बाद उसको फिजिकल कुछ करने दीजिए, निकलने दीजिए उसकी क्रिएटिविटी को बाहर इन अदर वेज। जो इरिटेशन है, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो भी वेंट आउट होगा, वह भी मांगता है बाहर जाना। और उसको अपने बिहेवियर में, अपने रोज के काम में लाने के लिए एक रूटीन मेंटेन करिए घर पर, क्योंकि स्कूल्स नहीं है, ऑफिसेज नहीं है, तो एक रूटीन नहीं रह गया, डिसिप्लिन नहीं रह गया। लेट उठना या 10 बजे से क्लासेस है, 9 बजे से है, तो 8:55 पे स्क्रीन ऑन करके बैठ जाना जैसे तैसे, ऐसा मत करिए। कल्टिवेट अ फीलिंग ऑफ डिसिप्लिन, इससे सभी काम रूटीनली होंगे और फ्रस्ट्रेशन का जो लेवल बढ़ता जाता है शाम तक, वो नहीं होगा। घरों के अंदर कियोस देखा है मैंने, दिस कियोस शुड नॉट बी देयर, लेट देयर बी जॉय। मैं और भी बहुत से सॉल्यूशंस दे सकती थी, इस तरह के पॉजिटिव सॉल्यूशंस, बट डिफरेंस क्या है? आप अध्यात्म से सहारा ढूंढते हैं और कहीं और सहारा ढूंढते हैं। उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि हम रूट्स को टच करते हैं। So there is one word solution for everything, that is joy. See, this is missing. You would all agree with me. पिछले 8 महीने में, 9 महीने में, क्या वो अनबाउंडेड, अनमैच्ड जॉय अनुभव किया है किसी ने? क्या घर के अंदर वो जॉयफुल एटमॉस्फेयर था? कभी कभी आपने खुशियों की बात की, खेले आप। एक पेरेंट्स ने शेयर किया कि हमने पहले 2 वीक में अपने बच्चों के संग लूडो खेला, चाइनीज चेकर खेला, बहुत सी ऐसी चीजें करी जो हमने कभी नहीं की थी। वी एंजॉयड, पर धीरे धीरे सब फिजल आउट होता चला गया। हम बहुत समय तक उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, बोर होने लगे और बच्चे वापस गैजेट्स पे आ गए। तो वो जो एक एंथ्यू था वो खत्म हो गया और क्या रह गया उसकी जगह? एक बादल जैसे छाया हुआ था, डर का, अनसर्टेनिटी का। क्या होगा, क्या नहीं होगा इसका। आसपास से न्यूज आने लगी, someone died or someone is hospitalized, that person is having COVID। रोज घटनाएं, कोई एम्बुलेंस में जा रहा है, कहीं पर वैन आ रही है, कहीं टेपिंग हो रही है, तो जॉय निकल गया लाइफ से। एक बार फिर से पहला वाला चार्ट देखिए, प्रॉब्लम्स वाला। यदि जॉय है तो इरिटेशन नहीं होगा। यदि जॉय है, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्योर जॉय, if that joy is there, there won't be anything uncertain, there will not be fear, the self-esteem will be high, there won't be any addiction, there won't be any sleeping or eating disorder। डिप्रेशन हो ही नहीं सकता है जॉय के संग, दे आर ऑपोजिट्स। एंजाइटी, ट्रॉमा, सैडनेस, होपलेसनेस, ड्रॉप इन कंसंट्रेशन नहीं होता जॉय में। इफ देयर इज जॉय, concentration is improved, there won't be any behavior abnormalities, feeling of worthlessness और lack of energy का तो क्वेश्चन ही नहीं है। So joy is the answer to everything. Why? Why the joy is the answer? Because joy नाम है ईश्वर का, आनंद। If that आनंद is there, if that bliss, that joy is there, you can fight with anything. You are ready to fight with anything. There won't be fear at all. Satchidanand.
this anand, this joy brings hope. This joy brings certainty. This joy brings wisdom. क्या करना चाहिए हमें जब सिचुएशंस खराब हैं, तो रास्ते निकलने लगते हैं, सॉल्यूशंस मिलने लगते हैं. They come from within. So cultivate this joy within. और तब आप देखिए कि कैसे आपका घर का एटमॉस्फेयर चेंज होता है, कैसे प्रॉब्लम्स खत्म होने लगती हैं. अब वो जॉय कैसे आएगा, इस पर हम बाद में बात करेंगे. I have answers for that too. First, I would like to talk parents now. कि हमने प्रॉब्लम्स पे बात की, सॉल्यूशंस पे बात की इन जनरल वे. अब हम इंडिविजुअल वे पैटर्न पे भी बात कर सकते हैं. Shaurya also mentions that lack of concentration has increased and why has it happened? Yes, concentration लेवल बच्चों का गिर गया है बहुत ज़्यादा. तो इसके कारण कई हैं. एक तो सबसे पहले लॉकडाउन, जिसने कियोस क्रिएट किया है. सी हमारे ब्रेन के अंदर जो नर्व्स जाती हैं वो सबसे अच्छा काम करते हैं. जो इलेक्ट्रिक करंट्स जाते हैं वो सबसे अच्छा काम करते हैं यदि सिचुएशन, द आउटसाइड सिचुएशन वर्ल्ड की एक रिदम में हो. और यदि उसके अंदर कियोस पैदा हो जाता है तो कंसंट्रेशन लेवल गिरने लगता है. तो ये एक न्यूरो फिजिकल प्रॉब्लम है. अब यदि मेंटली भी यदि पर्सन एजिटेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड है, तो ये कंसंट्रेशन लेवल और गिर जाता है. तो अब यहाँ क्योंकि डर था सब बच्चों के अंदर पैंडेमिक का, और जैसा कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड चल रहा था, तो उस डर ने फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाया. प्लस बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे, लोगों से मिल नहीं पा रहे, तो लोनलीनेस, जिसने फ्रस्ट्रेशन को और अधिक बढ़ाया. तो ये सब फैक्टर्स थे जिन्होंने कंसंट्रेशन कम किया. अब इसके ऊपर एड ऑन फैक्टर हुआ मोर टाइम ऑन स्क्रीन. जैसे ही हम स्क्रीन की बात करते हैं तो स्क्रीन से पिक्चर मेमोरी नहीं बनती. यू मस्ट अंडरस्टैंड द फैक्ट कि यदि हम पेपर के ऊपर किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो एक पिक्चर मेमोरी बनती है. और यदि हम स्क्रीन के ऊपर उसी बात को पढ़ते हैं लाइक PDF फाइल्स के जरिए या स्क्रीन शेयरिंग के जरिए या किसी भी तरीके से, तो उस तरह से माइंड में उस पिक्चर की पिक्चर नहीं बन पाती, स्क्रीन की मेमोरी नहीं बन पाती. तो इसलिए ऐसा लगता है कि कंसंट्रेशन और गिर गया है. तो क्योंकि जितना टाइम, जितना एफर्ट बच्चा देता है स्क्रीन के ऊपर, उसको उतना उसका रिजल्ट नहीं मिलता, तो उसे लगता है कि इसको करने से कोई फ़ायदा नहीं है, और इसलिए वो और कम एफर्ट देता है नेक्स्ट टाइम. तो साइक्लिक हो जाता है ये. इसलिए कंसंट्रेशन लेवल गिरता चला जाता है. बट नथिंग टू वरी अबाउट. ये लॉकडाउन फेज धीरे धीरे ओवर हो जाएगा, और ये जो ड्रॉप इन कंसंट्रेशन आया है दैट विल बी रीगेन्ड वेरी सून. बट यू हैव टू हैव दिस पॉजिटिव एटीट्यूड एट होम, जिससे कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ना हो उसके. राइट. माँ, एक और सवाल आया है फ्रॉम रिद्धि सेठी. शी आस्क्ड how to make toddlers listen to parents. Repeating things makes me anxious, makes me irritated. Mother-child relationship is suffering. उनको खेलने दीजिए. ऐसे ही उनके खेलने की जगह इतनी कम हो गई है, और घूमने दीजिए घर के अंदर. आपके पास लॉन है तो बहुत अच्छी बात है, और एंजॉय करिए उनके साथ लाइफ. ये टाइम लौट के नहीं आएगा. पूरा क्वेश्चन क्या था देवांशी, प्लीज रिपीट. The next part of question is that repeating things to toddlers, I am assuming,
is irritating if we want to make toddlers listen to parents, and अगर हम बच्चों को बार बार सेम चीज बोल रहे हैं तो वो irritating होता है and वो मदर चाइल्ड रिलेशनशिप को भी डिस्टर्ब करता है। बच्चों को, टॉडलर्स को रिपीटेटिवली हमको बोलना ही पड़ता है। आप उन्हें बार बार एक बात कहिए, तभी उनको समझ में आएगी। ये चिड़िया है, ये चिड़िया है, यहाँ थी है, यहाँ थी है, डोंट डू दिस। यू हैव टू कीप ऑन रिपीटिंग थिंग्स। एक बार में बच्चे को याद नहीं होती है, दिस इज द वे दे ग्रो। सो डोंट बी इरिटेटेड, हैव पेशेंस। हो सकता है कि आपके ऊपर थोड़ा फर्क पड़ रहा हो। यदि आपका बच्चा इतना छोटा है तो यू ऑल्सो मस्ट बी वेरी वेरी यंग। सो आपके ऊपर फर्क पड़ रहा है दिस पैंडेमिक का। जब तक यदि आप स्ट्रेस में रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, उस समय आप बच्चे के पास बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि मम्मी और बच्चे का जो रिलेशन होता है वो बहुत अधिक भावनात्मक होता है। आपकी फीलिंग्स को वो समझता है। आप उसका नाम भी यदि लेते हैं 10 मूड में 10 तरीके से, और बच्चा उसे क्षण समझ जाता है कि मम्मी की फीलिंग क्या है। ईश्वर की नियामत है बच्चा, और उसको एक ट्रॉफी की तरह, एक रत्न की तरह संभालिए। उसका जीवन बनाने की जिम्मेदारी ईश्वर ने आपको दी है। यू आर अ मदर, यू आर नॉट परमिटेड टू गेट इरिटेटेड, सो डोंट डू दैट, बिल्कुल भी नहीं। प्यार, लव, पेशेंस। माँ, अगला सवाल मोना त्रिपाठी पूछ रही हैं। चिल्ड्रन आर नॉट इन सिंक विद लाइफ, दे हैव बिल्ट देयर ओन cocoon, and the sad part is that they are happy with it. How should we deal with it? Very true, Mona, very true. They have built a cocoon around them and they are happy with it. This is the sad part. Yes, very true. तो ये विड्रॉन सिम्टम्स हैं। या तो बच्चा शुरू से इंट्रोवर्ट है, देन इट्स ओके, बिकॉज ये उसका इनहेरेंट नेचर है। पर यदि ऐसा नहीं है, ऐसा सडनली हुआ है, देन यू शुड पे अटेंशन। क्योंकि यदि एक बाहर चार दीवारी है और एक मेंटल चार दीवारी है, उसके अंदर बच्चा अपने को कैद कर लेता है, तो ये उसके डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं है। बहुत सी चीज़ें बाहर नहीं आ पाएंगी, खुद को कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, फीलिंग्स अंदर रह जाएंगी, और ग्लैंड्स बनती चली जाती हैं, साइकोलॉजिकल ग्लैंड्स, जो आगे जाके बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है लाइफ में। तो इस दीवार को अभी तोड़ना होगा, इस ककून से उन्हें आज़ाद कराना पड़ेगा। तो उसके लिए आप यदि प्रॉब्लम सीवियर है तो आप बिहेवियरल काउंसलिंग करा सकते हैं। नहीं, यदि प्रॉब्लम अभी अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे ही है, तो आप बच्चों के साथ बात करने की कोशिश करें, उनके साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करें, उनकी टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करिए। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेरेंट्स को इस समय टेक सेवी होना। आपको उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए जो 70s 80s में हैं और वो अपने मोबाइल फोन्स ऑपरेट कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू लर्न लैपटॉप्स ऑल्सो। सो यदि आपको बच्चे के पास जाना है, उसके दिल को छूना है, तो गैजेट्स को सीखने की कोशिश करिए, क्योंकि उस तरह से आप उनके करीब पहुंचते हो। वो आपको अपने फ्रेंड की तरह देखने लगते हैं। नहीं तो बहुत बड़ा गैप फील होगा बच्चे को, क्योंकि सी वर्ल्ड इज चेंजिंग रैपिडली। हम जब छोटे थे तो टीवी आया था और 4 पाए के ऊपर एक टीवी का बॉक्स था। व्हेन आई वाज 5-6 ईयर ओल्ड, तब वो आया था ब्लैक एंड वाइट टीवी। और आज देखिए, सो वर्ल्ड इज चेंजिंग रैपिडली। यदि आप इसके साथ चेंज नहीं होंगे तो बच्चा आपसे स्वतः दूर होता चला जाएगा। वो PS5 पे आ गया, आपको मालूम ही नहीं है कि मोबाइल कैसे चालू करते हैं। तो स्टार्ट लर्निंग थिंग्स, वन थिंग। सेकेंड, बी पॉजिटिव, हैव पेशेंस। पेशेंस इज द की वर्ड फॉर चाइल्ड एंड पेरेंट रिलेशनशिप।
क्योंकि एकदम से ओपन नहीं हो रहा। आपने कोई बात कह के छोड़ दी बच्चे को, तो वेट करिए, वो पलट के आएगा। यदि पलट के नहीं आता है, फिर आपने कुछ कह के छोड़ दिया, उसके पसंद का कुछ खाना बना के छोड़ दीजिए। कभी उससे कोई ऐसी बात कह दीजिए जो उसे पसंद है। म्यूजिक, आर्ट, साथ बैठ कर के कुछ ऐसा करिए जो जो वो लाइक करता है। छूट दीजिए उसे, दूसरों से बात करने की छूट दीजिए। सो देयर आर many ways to tackle this problem. हमारे पास इसी से सिमिलर सवाल है जो दो लोगों ने पूछा है, शिप्रा अरोड़ा और मोनिका जी पूछती हैं, and it's a similar question कि why children think mobile is only their source of entertainment, and शिप्रा जी says that कि उन्होंने सब कुछ ट्राई किया है, और डांस भी, जुम्बा भी, प्लेइंग कैरम, एवरीथिंग, बट उनकी जो डॉटर है वो फोन पे ही बिजी रहती है, एंड शी इज आस्किंग व्हाट शुड आई डू, व्हाई इज शी ऑलवेज बिजी ऑन हर फोन। देखिए, लाइफ का ये टाइम है, वो इस तरह खुद को शोकेस करते हैं कि दे नो एवरीथिंग एंड दे आर केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग। बट इस सब के पीछे एक बहुत ही वल्नरेबल बच्चा छुपा हुआ है। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो दिखाता है कि उसके पास टाइम नहीं है आपसे बात करने का, वो आपको अवॉइड करता है, वो अपने अपने फ्रेंड्स में बिजी रहता है, अपने गैजेट्स में बिजी रहता है, अपने स्टडीज़ में बिजी रहता है, और एट टाइम्स आपको इस तरह कह देता है कि आप हर्ट हो जाते हैं कि मेरे पास समय नहीं है या वॉट एवर। बट वो आपसे बहुत गहरे जुड़ा हुआ है। बिलीव मी, जितना एक छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होता है, उससे ज़्यादा ये एडोलेसेंस एज का बच्चा अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए यदि आपकी लाइफ में, थोड़ा सा यदि आप बीमार हो जाए, तो फिर देखिए, वो कह नहीं पाता इस समय, वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता अपनी फीलिंग्स को, इसलिए और अधिक आवश्यक है कि आप उसके साथ हों। बट आप उसके साथ हों, यू आर देयर वेन एवर ही और शी नीड्स यू, ये फीलिंग कन्वे करनी होती है आपको बस उससे। एक्सेप्ट करिए कि वो जुड़ेगा अपनी फ्रेंड से, एक्सेप्ट करिए कि आज उसके लिए फ्रेंड्स अधिक इम्पॉर्टेंट है। ये लाइफ का पार्ट है, ये टाइम है उस लाइफ का जो सबके संग आता है, ये फेज। तो यहाँ पर आपके पेरेंट और बच्चे के रिलेशनशिप चेंज हो रहे हैं, द केमिस्ट्री इज चेंजिंग, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस टाइम। इस सीन को यदि आप एक्सेप्ट कर ले गए और उसके अकॉर्डिंग आपने खुद को ढाल लिया, तो आप सिचुएशन को विन कर जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा उसमें चेंज लाने की कोशिश मत करिए, बल्कि सिर्फ एक फीलिंग कन्वे कर दीजिए दैट आई एम देयर व्हेन एवर यू वांट, आई एम हियर। हमारे पास एक और सवाल है जो राखी जी पूछ रही हैं, एंड आई थिंक राखी जी की डॉटर वन्या पूछ रही है, हाउ टू डील विद सोशल एंजाइटी। एंड ये सवाल हमें दो बार आया, राखी जी ने पूछा है और एक और यूजर है, उन्होंने भी पूछा है ये सवाल। सोशल एंजाइटी अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने आप को उनके बीच इस्टेब्लिश करने के लिए, अपने आप को ग्रुप में रखने के लिए क्रिएट हो जाती है। और कभी कभी ये भावना इसलिए और ज़्यादा बलवती हो जाती है, दिस एंजाइटी फैक्टर, बिकॉज यू वांट टू गो अहेड ऑफ अदर्स, कंपटीशन लेवल ज़्यादा है। तो जिस कारण से ये हो रहा है, हमको उस कारण को हटाना होगा। सो फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड इट, दे आर इनसाइड यू। सोसाइटी वैसे ही रहने वाली है, वो 50 ईयर्स पहले भी वैसे ही थी, आज भी वैसे ही है और कल भी वैसे ही होगी। सोसाइटी आपकी नहीं होती, सोसाइटी कभी भी आपकी नहीं होती। आप उसमें जाते हैं, अपने आप को प्रूव करते हैं, कभी हो पाता है कभी नहीं, और लौट के आते हैं, फिर यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट।
तो find out the reason why you are anxious. Just be what you are. इसको गुरु मंत्र समझ करके अपना लीजिए. Thank you so much, ma'am. I think that is all the questions. Thank you is pouring in the chat box, and yeah, thank you so much. So thank you so much, parents. अभी हमारा एक संदेश, एक मैसेज बाकी है. The positive changes in COVID pandemic time. आपको लगता है कि पैंडेमिक इज बैड बैड बैड, बट पैंडेमिक आपको एक ब्राइटर फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा है. बिलीव मी, ये बहुत जरूरी था. क्यों? क्योंकि हमें ग्लोबल होना था. पीछे जाके देखिए कि किस तरह से व्यू बढ़ रहा है. आपका व्यू जो पहले एक पर्सन का, एक इंडिविजुअल का की सोच जो पहले उसके घर तक सीमित थी, फिर गांव तक बढ़ी, शहर तक बढ़ी, कंट्री तक बढ़ी, और आज के दिन वो ग्लोबल हो गई है. पैंडेमिक ने सबको एक कर दिया है. तो उस ग्लोबल सोच को और अधिक बढ़ाना, उस टेक्नोलॉजी को पूरे वर्ल्ड तक लेके जाना, ये जरूरी था. ये नेचर का अपना टर्न है. हमने हेल्थ इश्यूज पे बहुत बात की, सबने इंटेलिजेंस पे बहुत वर्क किया. बच्चों को मशीन बना दिया स्कूल भेज करके, कॉपी कट पेस्ट. बट किसी ने कभी इमोशनल क्वेश्चन की बात की? इमोशनल इंटेलिजेंस की कोई बात कर रहा था? नहीं. वो ब्रेक होता जा रहा था, वो कम होता जा रहा था. इमोशनल स्ट्रेंथ दिन पर दिन वीकर 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 वीकर. आज का बच्चा एक डांट सुन नहीं सकता, किसी का छोटा सा कमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकता, टूट जाता है, डिप्रेस हो जाता है, एंजाइटी का शिकार हो जाता है. वाई? क्योंकि इतने हमने शॉक एब्जॉर्बर लगा के रखे उसके नीचे कि उसको आदत ही नहीं गिरने की. फेलियर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, मोर देन सक्सेस. सो अब क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स आने लगी, मेंटल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो उसको देखने के लिए उसके ऊपर काम होना शुरू हो गया. Now people are thinking about emotional quotient also. They are taking care of mental health as well. Families are uniting. टूट गई थी फैमिलीज, बिखर रही थी, वैल्यूज खत्म हो रहे थे, रियलाइजेशन ऑफ वैल्यू. आप देखिए, आपने एक साथ समय बिताया, लड़के झगड़ के या कैसे भी, बट एक दूसरे को जानने लग गए, पास आने लग गए. ये मालूम पड़ गया, वैल्यूज चेंज हो गई. ये पता चल गया कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट. यदि किसी को कोरोना हो जाता है तो पूरा परिवार जुट जाता है उसके साथ. वैल्यूज, दैट लाइफ इज सो इम्पोर्टेंट, बाकी की चीज़ें कम इम्पोर्टेंट हैं. और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जनरेशन गैप, सो दिस इज नाउ डिमिनिशिंग. हाउ people are really learning technology, they are coming closer to the youth. So एक तरह से पास आ रहे हैं. जनरेशन गैप को हम दो तरह से देख सकते हैं. एक वो गैप होता है जहाँ सोच अलग होती है, और एक वो गैप होता है जहाँ लिविंग के मेथड्स ही अलग हो गए. तो एक इतना बड़ा गैप आ गया था कि एक 50-60 साल का व्यक्ति मोबाइल चलाना नहीं जान रहा है, और एक बच्चा है जो इंटरनेट और पता नहीं क्या क्या, कौन कौन से गैजेट्स. सो एक वाइड गैप बीच में आ गया था, विच इज नाउ क्रेडिट गोज टू कोरोना, कि सब एट पार आने लग गए. स्कूल्स एंड पीयर प्रेशर वॉज इंक्रीजिंग डे बाई डे. बट एक और सर्वे हुआ जो ये कह रहा है कि ड्यूरिंग पैंडेमिक स्कूल पीयर प्रेशर इज रिड्यूस्ड क्वाइट अ बिट. अभी के लिए सिचुएशंस आर चैलेंजिंग, बट ह्यूमैनिटी ने हमेशा चैलेंजेस को मीट किया है और हराया है. अपने बच्चों के साथ मिल के चलें, उनको जज ना करें, उनके ऊपर ट्रस्ट करें. बहुत बार ऐसा होता है, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि गलती उनकी नहीं होती, बिकॉज दे आर स्टिल अ चाइल्ड. तो हम बड़े हो गए तो वी शुड बिहेव लाइक ग्रोन अप्स.
You are always welcome to discuss your problems here. So take care. Have a good day. Include joy in life. Do not forget. इस जॉय को मंत्र से, ध्यान से पाया जाता है। सो यदि ये इंग्रेडिएंट मिसिंग है तो यू आर नॉट हैविंग अ परफेक्ट रेसिपी फॉर बीइंग अ परफेक्ट पैरेंट। थोड़ा सा, चुटकी भर नमक और थोड़ा सा जॉय। नमस्कार।